everyone. Today I am going to explain you some of the important topics of chapter Nationalism in India. Students, as you already know that we had already covered two important topics of this chapter before, and in the last lecture we had started another topic, and that was towards the civil disobedience movement, in which few of the topics we had already covered, that how the Swaraj party was formed. Then we had done that Simon Commission, how Simon Commission came to India. Then we had covered that Purna Swaraj, and one more important topic, Salt March, we had done how Indians participated in the movement. Later on we had done that how which kind of steps taken by the British government to repress the movement, and why Gandhiji called off the movement, and how he entered into the Gandhi-Irwin Pact and relaunched the civil disobedience movement. So we had covered till there, and now I will start with the second subtopic of the main topic towards the civil disobedience movement, and that is how participants saw the movement. Students, as we had already seen in the case of non-cooperation movement also, that different social groups participated in that movement. Like we have done Awadh, peasants of Awadh, we had done that participated in that movement, and we had done the tribal peasants of Godam Hills of Andhra Pradesh, and we also done Assam plantation workers. That all these social groups participated in the non-cooperation movement, but the meaning of Swaraj was different for them. So same here also with this movement. This movement is civil disobedience movement, and how the different social groups participated in this movement, and what was the meaning of Swaraj for them, that we are going to read in this part. So first is the rich peasant communities. Rich peasant communities participated in the civil disobedience movement. For example, the Jats of Uttar Pradesh and Patidars of Gujarat participated in the civil disobedience movement. Being the producer of commercial crops, they were very hard hit by the economic depression. As I had already told you that in 1930 economic depression was there, and because of that peasant communities were not able to pay the revenue to the Britishers. So this was the reason why they participated in the civil disobedience movement, because they wanted that revenue must not be taken by the Britishers because of economic depression. Their cash income dwindled. They डू नॉट हैव, उनके पास उस टाइम पर क्या नहीं था, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो रेवेन्यू को पे कर सके. सो दिस वॉज द रीजन वाई रिच पीजेंट पार्टिसिपेटेड इन द civil disobedience movement. After them, in the beginning they participated in enthusiastically, but later on what they had seen, that when Gandhiji again relaunched the movement in 1932, when he came back from England after attending the second round table conference, and he relaunched the civil disobedience movement. तो जिस तरह से पहले रिच पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में, जब गांधी जी ने दोबारा उसको स्टार्ट किया, तब उस टाइम पे उतने एंथुजियास्टिकली इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि गांधी जी कभी भी मूवमेंट शुरू करते हैं और कभी भी बंद कर देते हैं, और उनका कोई भी फायदा उसमें नहीं हुआ है. तो ये एक हमारा रिच पीजेंट कम्युनिटी थी, those who participated in the civil disobedience movement, and for them meaning of Swaraj was that they wanted to remit the revenues. After then, the
poor peasants. Poor peasants were also participated in the civil disobedience movement, but their aim was not only to remit the revenue, but they also want that landlord must not take rent from them, क्योंकि उन्होंने क्या लिया हुआ था, ज़मीनों को किराए पर लिया हुआ था और उन्हें दो तरह से पे करना होता था कि उन्हें किराया भी पे करना होता था, ऑन द अदर हैंड उन्हें रेवेन्यू भी पे करना होता था। तो उनकी दो डिमांड्स थी कि उन्हें नो रेंट मूवमेंट उन्होंने चलाया कि उन्हें किसी भी तरह का किराया इस साल नहीं देना चाहिए। सो दिस वॉज द रीज़न वाई दे पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। Now comes the third, that are the industrialists. Why industrialists entered into the civil disobedience movement? The main reason behind that is during the First World War, the industrialists get so much of benefit. हमने किया था ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो हमारे जो, क्योंकि वॉर में इंडल्ज हो गई थी ब्रिटिशर्स, तो हमारे जो हैंडलूम वर्कर्स थे या हमारे पास जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हें मौका मिल गया था बिजनेस करने का। तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, काम था। बट आफ्टर जब क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट, लेकिन वो धीरे धीरे किससे घबराने लगे, जब आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो ब्रिटिशर्स थे दोबारा से अपने सामान को इसी तरह इन्होंने यहाँ पर भेजना शुरू किया, देन दे फियर्ड कि अब क्या होगा कि इम्पोर्ट बढ़ जाएगा, और इम्पोर्ट अगर बढ़ जाता है दैट मीन्स कि उससे क्या होगा, इन इंडस्ट्रियलिस्ट को नुकसान हो जाएगा, वो बाहर बिजनेस नहीं कर पाएंगे और कंट्री में भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो दिस वाज द रीजन व्हाई दे पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिकॉज दे वांट that government should plan in such a way that they will not give the rights of import to the other countries to our country, कि यहाँ पर किसी का भी इम्पोर्ट होकर वो सामान को ना आने दें। तो इसके लिए उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। एंड दे ऑल्सो मेक टू फॉर द बिजनेस पर्पज दे मेक इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस। उन्होंने दो इस तरह की बिजनेस कॉर्पोरेशंस बनाई थी, लाइक इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। इसके अलावा उन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई एंड दैट वाज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज in 1927. So in the beginning they enthusiastically participate in the civil disobedience movement. बहुत उत्साह के साथ उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, बट लेटर ऑन उन्होंने ये देखा कि गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया है, और तो दोबारा जब गांधी जी ने उस मूवमेंट को शुरू किया तो उन्होंने उस टाइम पीरियड में इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी ये किसने बनाई थी? जी.डी. बिरला ने बनाई थी, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने बनाई थी, और उनका मेन एम ये था कि किसी ना किसी तरह ब्रिटिशर्स इस तरह के स्टेप्स लें कि रुपी स्टर्लिंग का जो रेशियो है उसको भी इस तरह बढ़ा दिया जाए कि इंपोर्ट ना हो सके कंट्री के अंदर, और बाहर की कंट्री को यहाँ पर इंपोर्ट ना कर सके। तो उनके लिए स्वराज का मीनिंग यही था। तो यहाँ तक हमें समझ आया कि रिच पीजेंट्स के लिए स्वराज का मीनिंग क्या था कि रेवेन्यू ना लिए जाए। इसके अलावा पुअर पीजेंट्स के लिए क्या था? रेंट को माफ कर दिया जाए। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या मीनिंग था उसका? इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए मीनिंग था कि इंपोर्ट को रोक दिया जाए। सेकेंडली, रुपी स्टर्लिंग रेशियो को इतना बढ़ा दिया जाए कि वो डिस्करेज करे। किसको डिस्करेज करे? इंपोर्ट को डिस्करेज करे। नाउ वी मूव टू, अब उन्होंने और क्या किया? ये दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई थी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने इंडिया में, ताकि वो बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा सकें।
इसके अलावा वो धीरे धीरे डरे भी हुए थे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लीडर्स आ रहे थे जो सोशलिस्ट थे और कहीं ना कहीं सोशलिज्म में बिलीव करते थे। अब सोशलिज्म का हमने या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को हमने लास्ट ईयर 9th में भी पढ़ा था कि जिसमें इंडस्ट्रियल क्लास और वर्कर क्लास को समान माना जाता है, उसमें डिफरेंस नहीं माना जाता। अब ऑब्वियस है वो तो नहीं चाहेंगे ऐसा, तो इसलिए वो कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं परेशान थे कि कांग्रेस के जो यंग लीडर्स हैं उनकी आइडियोलॉजी कैसी है, सोशलिस्ट होती जा रही है। तो here we completed that how industrialists participated in the civil disobedience movement. Now comes the industrial working class. Ab how industrial and why industrial working class participated in the civil disobedience movement? Actually, except Nagpur, most of the part of country workers were not participated in it, because they know that Congress was reluctant to them, because they know that Congress is with industrialists. सबको पता था कि कांग्रेस किसके साथ है, कांग्रेस इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ है और वो उन्हें कभी सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन कुछ पार्ट्स में जहाँ जहाँ स्ट्राइक्स वगैरह हुई वहाँ पर गांधी जी की कुछ आइडियोलॉजी को इन वर्कर्स ने एक्सेप्ट किया था। जैसे इन 1930 में रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक की, तो दैट मीन्स उन्होंने किनकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया, गांधी जी की। लेटर ऑन डॉकयार्ड वर्कर्स ने भी 1932 में स्ट्राइक की। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में भी वहाँ पर जब वर्कर्स ने स्ट्राइक की तो उन्होंने गांधीनियन कैप को वियर किया। तो जो किस चीज़ का एक एग्जाम्पल था कि वो गांधी जी का साथ दे रहे हैं। although they know that Congress never support them, क्योंकि कांग्रेस क्यों डरी हुई थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट तो उनको हेल्प करते थे, और अगर कांग्रेस वर्किंग क्लास को हेल्प करती दैट मीन्स वो किसका विरोध कर रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट का। तो इसलिए डायरेक्टली कांग्रेस ने कभी भी इस वर्किंग क्लास को हेल्प नहीं किया था। आफ्टर देन कम्स टू विमेन पार्टिसिपेंट्स, दैट मीन्स कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि विमेन, अब विमेन्स में भी जो रिच विमेन थी जो शहरों में रहती थी, इसके अलावा जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे उनके घरों की जो औरतें थी, उन्होंने गांधी जी की कॉलिंग पर, कि गांधी जी ये मानते थे कि विमेन्स का सिर्फ एक काम चूल्हा चौका करना ही नहीं है, बल्कि उनका देश के लिए भी कुछ ड्यूटी है, अपने घर के लिए भी ड्यूटी है तो देश के लिए भी ड्यूटी है। तो उनको उनके एक बार बुलाने पर ही वो सभी इकट्ठा हो जाया करती थी और उनके लिए उनकी हेल्प करती थी उनकी सभी मूवमेंट्स में। जैसे कि जब उन्होंने सॉल्ट मार्च शुरू किया तो जहाँ जहाँ भी गांधी जी रुके वहाँ सभी जो विमेंस जो थी उन्होंने भी उनका साथ दिया था, और इस तरह से विमेंस का पार्टिसिपेशन बढ़ा। इसके अलावा हमने देखा था कि किस तरह से जब लिकर शॉप्स को पिकेटेड किया जाता है तो वो भी विमेंस कर रही होती थी, जेलों में भी जा रही होती थी। Although Congress had never given a strong position to any women in the Congress party, तो उसमें उन्हें although एक strong position उन्होंने देने में काफ़ी टाइम लगा दिया था, लेकिन वो उनके उस contribution को हम डिनाई नहीं कर सकते जो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किया था। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर बिल्कुल ही सेपरेट हम सोचेंगे कि किस तरह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किस किस ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें पार्टिसिपेट किया था अवध के पीजेंट्स ने, इसके अलावा ट्राइबल पीजेंट्स ऑफ गोदाम हिल्स, इसके अलावा हमने किया था प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में। ऑन द अदर हैंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किस किस ने पार्टिसिपेट किया था, रिच पीजेंट कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया था, पुअर पीजेंट कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया था, इंडस्ट्रियलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्किंग क्लास ने पार्टिसिपेट किया और विमेंस ने पार्टिसिपेट किया। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे कि हाउ द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड हाउ द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड what was the meaning of Swaraj for them। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया है। Now we move to the next important subtopic of the topic towards civil disobedience movement। अब now we move to the limits of civil disobedience movement। लिमिट्स मतलब कमियां क्या थी।
कि क्या कमियां थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। तो क्या क्या कमियां हम इसमें देखते हैं कि नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर पार्टिसिपेटेड एंथुजियास्टिकली इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि सभी जो हमारे सोशल ग्रुप्स ने थे उन सभी ने एंथुजियास्टिकली उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। जैसे कि किसने नहीं किया था, दलित्स ने नहीं किया था। क्योंकि दलित्स ने, व्हाई दलित्स वर नॉट पार्टिसिपेटेड इन दैट, क्योंकि दलित्स को कहीं ना कहीं कौन हेल्प नहीं करता था, बिल्कुल कांग्रेस नहीं करती थी। और दलित्स जो थे दे नो, कि वो ये जानते थे कि जब तक कोई पॉलिटिकल सिचुएशन या पॉलिटिकल राइट उनको नहीं मिल जाता है तो तब तक उनके साथ जो ये डिस्क्रिमिनेशन होती है वो दूर नहीं हो पाएगी। बट गांधी जी ट्राइड हिज लेवल best because he know that Indians will not achieve independence without the help of Dalits. So this was the reason why Gandhi ji himself called them Harijans, and he himself do the work of Dalits also, and he tried his level best. But still Dalits thought that they would never get any position in a society till they will not able to get any position पॉलिटिकली। तो उसके लिए जो वो लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे कि भीमराव अंबेडकर को हमने देखा कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब वो गए तो ही आस्क फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट, एंड व्हेन गांधी जी सीन दैट ब्रिटिशर कॉन्सीडेड हिज डिमांड, कि उन्हें देखा कि उनकी डिमांड को वो कंसीड कर रहे हैं, तो दिस वाज द रीजन व्हाई गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। किस तरह से किया कि उन्होंने देखा कि किस तरह जो भीमराव अंबेडकर हैं वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं और उससे कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, तो बट जाएगी कंट्री पार्ट्स में, क्योंकि मुसलमान भी वही काम कर रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और कौन कर रहे थे, दलित्स भी कर रहे थे। तो यही एक्चुअली में वहाँ पर हमने रीज़न नहीं किया था कि वाई गांधी जी केम बैक टू इंडिया, कि बीच में ही छोड़कर वो नेगोशिएशंस को कहाँ वापस आ गए थे, इंडिया में, और यहाँ आकर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर दिया था, रीलॉन्च कर दिया था। उनके वापस आने का कारण यही था कि दलित्स पर आस्क फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट देयर। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मीनिंग होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही उस सभी जाति के लोगों को कर देना, और वहाँ से किसी भी पर्सन को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन अगर वो खड़ा होता है तो उनके लिए उसी ही जाति के लोग जो हैं वो वोटिंग करेंगे। तो गांधी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि ऐसे तो देश के कई टुकड़े हो जाते, मुसलमान अलग एरिया की मांग करते, दलित अलग एरिया की मांग करते। तो व्हाट गांधी जी हैड डिड, उन्होंने क्या किया था कि ही डिक्लेयर्ड फास्ट अनटू डेथ, कि जब तक जो भीमराव अंबेडकर हैं वो अपनी मांगों को वापस नहीं ले लेते हैं तब तक वो आमरण अनशन करेंगे। लेकिन उसके बाद सितंबर 1932 में गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर पूना पैक्ट को साइन किया। अब ये जो पूना पैक्ट साइन हुआ, इस पैक्ट के अंदर क्या था, इस पैक्ट के अंदर ये डिसाइड किया गया कि जो दलित्स हैं उनको क्या मिल जाएगा, रिजर्वेशन मिलेगा इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स में, एंड उनके लिए जो वोटिंग करेंगे वो सभी लोग वोटिंग करेंगे। दैट मीन्स जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, ज़रूरी नहीं है कि जैसे वो मांग कर रहे थे कि सभी दलित से एक जगह हो जाए, वो इलेक्टोरेट बन जाए और वहीं से वो खड़े हों। अब क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होने के बाद एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जैसे आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि रिजर्व कर दी गई सीट, अब कैंडिडेट उनका खड़ा होगा, वोटिंग उसके लिए सभी जाति के लोग करेंगे। तो इस तरह से भीमराव अंबेडकर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी सीट्स को रिजर्व कर दिया गया, और उन्होंने अपनी जो एक वो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की उसको छोड़ दिया। तो इस तरह से गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में क्या साइन हुआ था, पूना पैक्ट साइन हुआ था। ही लेफ्ट द डिमांड ऑफ, भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, क्या छोड़ दिया, डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, एंड गांधी जी provided them the reserve seat in legislative councils in council and
सेंट्रल प्रोविंशियल काउंसिल एंड सेंट्रल काउंसिल. सो द लिमिटेशंस हम यहाँ पर कर रहे हैं. तो कमियाँ हमारी एक इसमें क्या थे कि नॉट ऑल द सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, की सभी ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ये उसकी कमी है. पूना पैक्ट हमने कर लिया. नाउ वी मूव टू मुस्लिम्स. अब मुस्लिम पार्टिसिपेशन किस तरह का था ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. किस तरह का पार्टिसिपेशन था? द पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स वर ल्यूक वॉर्म. उनका पार्टिसिपेशन वॉज ल्यूक वॉर्म, कि वो बहुत धीमा था. बिकॉज आफ्टर नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, उस मूवमेंट के बाद, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो हुई थी, उस मूवमेंट के बाद जो मुस्लिम्स थे, दे स्टार्टेड फीलिंग एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस. वो फील करने लगे थे कि कांग्रेस में उनके लिए अब कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पर, बिकॉज द इम्पैक्ट ऑफ हिंदू महासभा रेज इन कांग्रेस, उसमें उनका इम्पैक्ट बढ़ चुका था. सो दिस वाज द रीजन व्हाई. ऑन द अदर हैंड, सेकेंड राउंड टेबल कांग्रेस में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किसकी मांग कर दी थी? सेपरेट इलेक्टोरेट की. एंड ही डिड नॉट वांट टू लेफ्ट हिज डिमांड टिल. वो क्यों उस डिमांड को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते थे? वो क्या चाहते थे कि अगर वो डिमांड को तब छोड़ेंगे जबकि क्या कर दिया जाएगा, एक तो उनकी सीट रिजर्व कर दी जाएगी, और सेकेंडली जहां पर भी मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं उस एरिया से अब कौन खड़ा होगा? मुस्लिम लीग का मेंबर इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए. तो ये दो मांगे थी जो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी. और वो कब की थी? कि वो अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को तब छोड़ेंगे जब उनकी सीट्स को रिजर्व कर दिया जाएगा, और सेकेंडली मुस्लिम एरियाज में वहां पर जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो किसका होगा? मुस्लिम लीग का होगा. तो इस तरह से मुस्लिम्स का जो पार्टिसिपेशन था वो बेटर नहीं था, क्योंकि अब लड़ाई झगड़े चल रहे थे, और जितने भी थ्रू आउट द कंट्री जितने भी रियॉट्स वगैरह हो रहे थे, उन रियॉट्स की वजह से क्या था कि और ज़्यादा उनके बीच में जो एक कहते हैं ना कि और ज़्यादा गहराती जा रही थी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में प्रॉब्लम्स. तो इस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना के अड़े रहने की वजह से कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं निकल पाया था. और उन सभी को विराम चिन्ह कब लग गया? जब एम.आर. जायकर ने, जो कि हिंदू महासभा के एक अध्यक्ष थे, उन्होंने ऑल पार्टी का जो एक मीटिंग चल रही थी, ऑल पार्टी मीटिंग जो चल रही थी 1928 में, और उसके बाद भी 1932 के करीब जब उनकी वो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस पार्टी चल रही थी, तो उसमें उन्होंने क्या कर दिया था कि उन्होंने बिल्कुल ये डिनाई कर दिया था कि मुस्लिम्स जो हैं, हम उनकी किसी भी बात को नहीं मानेंगे. तो वहाँ विराम चिन्ह लग गया इस चीज़ को कि मुसलमानों की बातों को नहीं माना जाएगा. तो इस तरह से अब मुस्लिम्स का जो रेस्पॉन्स था वो बिल्कुल ही कांग्रेस के लिए ख़त्म हो चुका था. तो till here we have completed the how participants saw the movement, कि participants ने movement को किस तरह से देखा. किन participants ने? इन participants ने movement को किस तरह देखा. फिर हमने किया कि what were the limitations of civil disobedience movement, कि not all the groups participated in it. दलित्स का इसमें लिखेंगे. फिर हम लिखेंगे कि पूना पैक्ट क्या था. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. पूना पैक्ट क्या था, किस किस के बीच में साइन हुआ था, और उसमें क्या शर्तें रखी गई थी. मुस्लिम्स का रिस्पॉन्स ल्यूकवार्म क्यों था नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान. नाउ द लास्ट टॉपिक एंड दैट इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. अब तक हमने स्टूडेंट्स 3 पार्ट अब हमारे पूरे हो चुके हैं. दैट आर, अगर हम उसे रिकैपिचुलेट करते हैं तो हमने खिलाफत मूवमेंट किया, हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, हमने उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किया, इसके बाद डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट किया, और थर्ड हमने स्टार्ट किया था टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें हमने ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है. नाउ वी मूव टू द लास्ट मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कि किस तरह से इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म रेज हुआ था. हाउ दे स्टार्टेड फीलिंग दैट दे बिलोंग टू अ सेम कंट्री एंड दे मस्ट फॉट टुगेदर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो किस तरह उनके अंदर ये एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग्स थी वो राइज हुई थी. तो दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पार्ट.
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नॉट बिकॉज ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल दैट दे फॉट फॉर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, कि वो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स जो एक यूनाइटेड स्ट्रगल को कर रहे थे, सिर्फ उसी ने उनके अंदर नेशनलिज्म को रेज नहीं किया था, बट ऑल्सो उनके अंदर और किसने नेशनलिज्म को रेज किया था, उनके अंदर जो नेशनलिज्म को रेज करने के लिए बहुत सारे कल्चरल प्रोसेसेस भी रहे थे, कि हमने कुछ उस टाइम पीरियड में इस तरह के सिंबल्स को यूज़ किया, आइकन्स को यूज़ किया, उस टाइम पीरियड में हमने इस तरह की पर्सोनिफिकेशंस को यूज़ किया था, जिसकी वजह से हमारे अंदर नेशनलिज्म रेज हुआ था। अब वो क्या क्या थे, तो एक तो क्या चीज़ थी कि हम एक साथ यूनाइटेड स्ट्रगल कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इसलिए हमारे अंदर क्या जागा, नेशनलिज्म। और दूसरे बहुत सारे कल्चरल प्रोसेसेस थे, बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से हमारे अंदर नेशनलिज्म रेज हुआ। अब वो क्या क्या चीज़ें थी, तो अगर हम उसको देखते हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ भारत माता। दैट मीन्स कि अब जो एक कंट्री थी उसको सिंबलाइज किया गया एक फिगर के रूप में, भारत माता के रूप में। और ये सबसे पहले किसने किया था, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने सबसे पहले इसको, इनकी एक पिक्चर को क्रिएट किया, माना। उन्होंने अपनी जो बुक्स थी उसके अंदर उसे लिखा, उन्होंने वंदे मातरम लिखा, और वंदे मातरम को फिर आनंद मठ में लिखा गया, और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पीरियड में भी। और इसी तरह से भारत माता की जो वो पिक्चर थी उसको एक पेंट किसने किया था, फिर पेंट उन्होंने तो क्रिएट कर दिया कि भाई ऐसा कोई फिगर होना चाहिए कि जिसे हम माता के रूप में पूजें अपने देश को। और उसके बाद वो किसने किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑन द अदर हैंड उसको पेंट किसने किया, अबिंद्रनाथ टैगोर ने उसे पेंट किया। तो बिगनिंग में जो भारत माता की पिक्चर थी, व्हेन यू विल सी दिस चैप्टर यू कैन सी द, पहले उनकी जो पिक्चर थी वो एक एसेटिक फिगर के रूप में थी, एक साध्वी के रूप में थी। और अब बाद में आते आते सब्सिक्वेंट ईयर्स में उसमें काफ़ी चेंजेस आए, और वो एक हम देखते हैं कि काफ़ी डिफरेंट थिंग्स उसके अंदर ऐड ऑन कर दिए गए थे। तो इस तरह से जब पर्सोनिफिकेशन हो गया भारत माता का, तो हम कहीं ना कहीं उसकी पूजा करने लगे, हम उसके लिए सब कुछ करने को रेडी होने लगे। तो वो क्या चीज़ क्रिएट की इस भारत माता की पिक्चर ने हमारे अंदर, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, कि हम सब एक हैं, हमारी जो ये माता है, ये भारत माता है, हमारा जो देश है वो एक भारत माता है, और उसके लिए हमें कुछ भी कर गुजरना है। तो ये सारी जो फीलिंग्स थी वो किसकी वजह से रेज हुई, इन पिक्चर्स की वजह से। नाउ रिवाइवल ऑफ इंडियन फॉकलोर, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि रिवाइवल मतलब पुनर्जागृत करना, किस चीज़ को, इंडियन फॉकलोर, यानी हमारा जो लोक साहित्य था। अब कहीं ना कहीं जो हमारी जो कहानियाँ होती हैं, लोक साहित्य होती हैं, जो एक से दूसरे व्यक्ति को पास ऑन होती रहती हैं, तो इस तरह से जगह जगह पर जो हमारी लोक गाथाएँ रहीं, उन सभी को कलेक्ट करने का काम किसने किया, एक तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में किया, और नतीशा शास्त्री ने वो साउथ में किया। और उन्होंने द फॉकलोर ऑफ सदर्न इंडिया भी लिखी। नतीशा शास्त्री ने क्या लिखा, द फॉकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। इस तरह से अब उन फॉकलोर्स में, उन लोक गाथाओं में, उन लोक कृतियों में हमने ये देखा कि किस तरह से हमारा जो पास्ट रहा है वो बहुत बेटर रहा है, और उसमें बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग जो कहानियाँ वगैरह थी वो उस टाइम पीरियड में जब लोगों को पता चली, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बिलोंगिंगनेस जो थी वो रेज हुई। ऑन द अदर हैंड आइकन्स एंड सिंबल्स, icons and symbols were also very much important, as we have seen कि 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो उस टाइम पीरियड में एक स्वदेशी फ्लैग को यूज़ किया गया था। उस फ्लैग को हम क्या बोलते हैं, स्वदेशी फ्लैग। अब वो जो स्वदेशी फ्लैग था उसमें 3 कलर थे, रेड, ग्रीन एंड येलो। इसके अलावा उसमें एक क्रिसेंट मून था, अर्ध चंद्राकार था, जो कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी का प्रतीक था। ऑन द अदर हैंड 8 लोटस थे, जो कहीं ना कहीं उस टाइम पे 8 प्रोविंसेस को सिंबलाइज कर रहे थे। तो इस तरह से एक स्वदेशी फ्लैग बना। उसके बाद 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग बनाया।
स्वराज फ्लैग के अंदर कौन कौन से कलर थे? रेड, व्हाइट एंड ग्रीन। अब उस स्वराज फ्लैग के अंदर गांधी जी ने वहां पर बीच में एक चरखा होता था जो किस चीज का प्रतीक था, किसको सिंबलाइज करता था? सेल्फ हेल्प को, कि हम अपनी मदद खुद कर रहे हैं, हम खुद काट रहे हैं और अपने लिए कपड़ा बना रहे हैं। तो इस तरह से ये जो स्वदेशी फ्लैग था ये कब यूटिलाइज किया गया? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट 1905 में। उसके बाद स्वराज फ्लैग किसने बनाया? गांधी जी ने बनाया। अब इसमें कलर क्या थे? रेड, ग्रीन, व्हाइट। इसमें कलर क्या थे? रेड, ग्रीन एंड येलो। अब ये कहीं ना कहीं जो सिंबल्स थे, ये सिंबल्स, ये जो आइकन्स थे, उससे हमारे अंदर क्या रेस हो रहा था? नेशनलिज्म रेस हो रहा था। क्योंकि अपने हाथों में फ्लैग लेकर चलना, उसको ऊपर उठाकर लेकर जब हम चलते थे उस टाइम पीरियड में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है कि हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, हम सभी इस झंडे के नीचे हैं और हम सभी इसके लिए, इसको ऊंचा उठाने के लिए कुछ भी करने को रेडी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन आइकन्स और सिंबल्स ने भी हमारे अंदर क्या रेज किया था? नेशनलिज्म को रेज किया। Now, reinterpretation of history. What is the meaning of it? Britishers always thought that Indians or Asian people are primitive. वो मानते थे, they thought that Indians and Asian people were primitive, और उन्हें किसी भी कल्चर के बारे में नहीं पता है। दे डिडंट नो एनी कल्चर। सो दिस वाज द रीज़न वाई हमारे जो हिस्टोरियंस थे, हमारे जो लीडर्स रहे थे, उन्होंने री इंटरप्रेट किया हिस्ट्री को और लोगों के सामने उन्हें लाया ताकि दे शुड फील प्राउड ऑफ दैम, कि वो अपने अंदर प्राउड फील करें। जो ब्रिटिशर्स बार बार उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता और प्रिमिटिव हो, तो उस चीज़ को भूल जाएं, बल्कि दे शुड प्राउड ऑन देमसेल्फ, बिकॉज क्योंकि उन्होंने हमारी कंट्री से बाहर हमने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ लोगों ने उसे सीखा है। तो कहीं ना कहीं जब उन पुरानी अपनी चीज़ों को उन्होंने पढ़ा, उस हिस्ट्री को पढ़ा, उसे देखा, तो कहीं ना कहीं सभी के अंदर थ्रू आउट द कंट्री सभी लोगों के अंदर क्या रेस हुआ? नेशनलिज्म रेस हुआ था। सेल्फ और कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस उनके अंदर रेस हुई थी। तो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीटेड द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। अब इसका मीनिंग समझ में आया कि हमारे अंदर कैसे राष्ट्रीयता की जो फीलिंग थी, नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी और एकजुट होने की जो फीलिंग थी, वो किस तरह से रेज हुई थी कि भारत माता की पिक्चर की वजह से, पर्सोनिफिकेशन की वजह से, रिवाइवल ऑफ इंडियन फोकलोर, दैट इज हमारे जो लोक साहित्य रहे हैं, लोक गाथाएं रही हैं, उनको पढ़कर हमारे अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आई कि हम सब एक हैं। आइकन्स और सिंबल्स को देखकर हमारे अंदर ये फीलिंग्स रेज हुई और री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री की वजह से, कि हमने अपने इतिहास को दोबारा दोहराने की कोशिश की कि हमें नीचा दिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने तो देश को बहुत कुछ दिया और हम सबसे पहले सिविलाइज्ड हुए हैं, तो ब्रिटिशर्स हमें किस तरह अनसिविलाइज्ड कह सकते हैं। तो उस हिस्ट्री को जब लोगों के सामने लाया गया तो दे स्टार्टेड फीलिंग प्राउड ऑफ देमसेल्व्स एंड दे स्टार्टेड they wanted to do anything for the sake of their country। तो इस तरह से उन्होंने हमारे अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को इन सभी चीज़ों ने रेज किया था। So students, here we completed the chapter Nationalism in India। As I had already told you before कि हमें ये चैप्टर इंसिडेंट्स वाइज याद करना है, और एक बार आपने उस तरीके से उसको याद कर लिया तो यू विल नेवर फॉरगेट दैट। तो अगर हम इस चैप्टर को रिकैपिचुलेट करें और रिकैपिचुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखेंगे हमने ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर खिलाफत मूवमेंट से। सबसे पहले इसमें आया था ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म किस तरह से ग्रोथ किया था हमारी कंट्री में। उसके बाद हमने किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग नेशनलिज्म अमंग इंडियंस। इसके बाद हमने गांधी जी के आइडिया ऑफ सत्याग्रह को किया था। हमने क्या किया था? गांधी जी का आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये धीरे धीरे आपको याद आ रहा है कि हमने ये सारा इसमें किया है
कि किस तरह नेशनलिज्म रेज हुआ, किस तरह से हमारे अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से नेशनलिज्म रेज हुआ, गांधी जी का आइडिया क्या था सत्याग्रह का, और 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स स्टार्टेड बाय गांधी जी। 3 मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट की थी, बिहार में इंडिगो प्लांटर्स के लिए स्टार्ट की थी, खेड़ा में पीजेंट्स के लिए स्टार्ट की थी, मिल वर्कर्स के लिए उन्होंने अहमदाबाद में स्टार्ट की थी। तो ये हमारी कौन सी थी, सत्याग्रह मूवमेंट्स। इसे करने के बाद हमने किया था कि यहाँ से एम्बोल्डेडनेस होने के बाद गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह किया था। रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने किया था किस तरह से, और उससे पहले ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट को पास किया था, जिसकी वजह से गांधी जी ने ये सत्याग्रह किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह कौन सा इंसिडेंट हुआ। एक जलियांवाला बाग इंसिडेंट से पहले हमने एक टर्म पढ़ी थी यहाँ पर, मार्शल लॉ याद है ना, कहाँ पर लगा था, अमृतसर में लगा था, जिसमें सभी राइट्स किसको मिल गए थे, जनरल ओ डायर को मिल गए थे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मार्शल लॉ। आफ्टर देन क्या आया, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। उसके बाद हमने देखा जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स ने शुरू की थी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। उसके बाद हमने यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट के बाद हमने किया था कि किस तरह से गांधी जी ने वाई नॉन कॉपरेशन कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के पीछे क्या कारण बताया था कि इंडियंस नेवर विन, उन्होंने क्या कारण बताया था कि ब्रिटिशर्स जो हैं हमारी कंट्री में इसलिए हैं क्योंकि हम उन्हें कॉपरेट कर रहे हैं, और जैसे ही हम उन्हें कॉपरेट करना छोड़ देंगे वो हमारी कंट्री को छोड़कर चले जाएंगे। तो ये हमने किया था कि वाई नॉन कॉपरेशन। उसके बाद हमने किया कि कॉलिंग ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बहुत सारे ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमने ये किया था मूवमेंट इन टाउन। हमने देखा था कि टाउन में किस तरह से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। उसके बाद हमने देखा था रिबेलियन इन कंट्री साइड, कि किस तरह से रिबेलियन हुआ कंट्री साइड में। अब इसमें 3 हमने किए थे, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरह से सबसे पहले हमारा कहाँ पर हुआ था। एक तो दैट इज अवध में पीजेंट्स ने किया, आफ्टर देन किसने किया, अवध में पीजेंट्स के बाद हमने देखा कि वहाँ पर गोदाम हिल्स में ट्राइबल पीजेंट्स ने विरोध किया। इसके बाद हमने ये देखा था कि वहाँ पर जो असम के प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने उसका विरोध किया था। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया। इसके बाद गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ किया था मूवमेंट को बिकॉज ऑफ चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था, तो गांधी जी ने क्या किया, उस मूवमेंट को वापस ले लिया था। फिर हम आ चुके थे थर्ड, हमारी जो हेडिंग थी दैट इज टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमने क्या किया था, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहाँ पर हमारे बहुत सारे हमने छोटे छोटे से जो टॉपिक्स थे उनको कवर किया था। जैसे कि जब चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ तो गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया। वापस लेने के लिए के बाद क्या हुआ कि पार्टी जो थी फेडअप हो गई थी, कांग्रेस पार्टी, तो क्या बन गया, उसमें से स्वराज पार्टी निकल गई। तो स्वराज पार्टी के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर क्या आया था कि जो सिचुएशन थी उस टाइम पीरियड में खराब होती जा रही थी, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से सब कुछ जो था परेशान थे, सभी लोग परेशान थे। तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड कंट्री वाज ऑन टर्मोइल, कंट्री ददक रही थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने, न्यू टॉरी गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को इंडिया भेज दिया था। उसके बाद साइमन कमीशन के बाद लॉर्ड इरविन ने क्या किया था, एक वॉग ऑफर दिया, एक आधा अधूरा सा भ्रम से भरपूर एक ऑफर दिया, एंड दैट वाज डोमिनियन स्टेटस हमने किया था।
तो डोमिनियन स्टेटस हमने किया, उसके बाद हमने क्या किया था, डोमिनियन स्टेटस उन्होंने दिया, तो उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी, 26 जनवरी 1950 में, सॉरी 30 में की थी। उसके बाद हमने इस डे को याद किया जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इसी दिन फिर लागू किया गया था। तो पूर्ण स्वराज हो गया। पूर्ण स्वराज के बाद हमने क्या किया, सॉल्ट मार्च किया गांधी जी ने, सॉल्ट मार्च किया गांधी जी ने। और सॉल्ट मार्च करने के बाद हम देखते हैं कि इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया, ब्रिटिशर्स ने ऑपरेसिव मेजर्स को उठाया, और उसके बाद यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। और गांधी इरविन पैक्ट के साइन होने के बाद गांधी जी ने मूवमेंट को रीलॉन्च कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ से किया ये आज कि किस तरह पार्टिसिपेंट्स ने देखा इस मूवमेंट को। रिच पीजेंट्स के लिए क्या मीनिंग था, पुअर पीजेंट्स के लिए क्या मीनिंग था, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या मीनिंग था, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के लिए क्या मीनिंग था, विमेन पार्टिसिपेंट्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। फिर हमने किया था लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या कमियां थी कि दलित्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, पूना पैक्ट साइन हुआ था गांधी जी के बीच में और भीमराव अंबेडकर के बीच में। मुस्लिम्स का जो रिस्पॉन्स था वो ल्यूकवार्म था क्योंकि हिंदू महासभा का प्रेफरेंस ज़्यादा बढ़ गया था कांग्रेस के अंदर। फिर हमने किया कि हमारे अंदर ये देशभक्ति, हमारे अंदर ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस किस तरह से रेज हुई थी कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ भारत माता की वजह से। सबसे पहले इसकी जो पिक्चर थी वो किसने पेंट की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने पेंट की थी। रिवाइवल ऑफ इंडियन फॉकलोर में हमने दो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस तरह से यहाँ पर सभी फॉकलोर्स को कलेक्ट किया। इसके अलावा सदर्न पार्ट में हम नतीशा शास्त्री को देखते हैं जिसने क्या लिखा था, एक बुक लिखी द रिवाइवल इंडियन फॉकलोर के ऊपर। उन्होंने फॉकलोर ऑफ सदर्न इंडिया उन्होंने एक बुक लिखी। आइकन्स और सिंबल्स में दो हमें फ्लैग याद रखने हैं, स्वदेशी फ्लैग याद रखना है और स्वराज फ्लैग याद रखना है। इसके अलावा री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री है कि हमने किस तरह से अपनी हिस्ट्री को दोबारा से री इंटरप्रेट करके लोगों के सामने लाए गए, और उसकी वजह से हाउ इंडियंस स्टार्टेड फीलिंग proud of it, and the sense of collective belongingness raise among them. So well students, here today we completed this chapter. Hope you all understand this chapter.